जैसे कि अभी हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर मैंने अभी एक्सप्लेन किया गोइंग टू स्कूल। नाउ ये हार्डवर्ड जो है वो तुम लोगों को नोटबुक में लिखना है। फर्स्ट वन चिल्ड्रन, रिच, बैम्बू ब्रिज, नी हाई, क्विकली, रोप, ब्रिक्स, प्योर फूट, लद्दाख, आसाम, ट्रॉली, वाइड, टाइटली, स्ट्रॉन्ग, रॉक्स, अटैच्ड, पुली, बकेट्स, वेरियस, सीमेंट, आयरन रोड, केरला, वेल्लम, कैमल कार्ट, राजस्थान, डेजर्ट, सैंड, बुलक कार्ट, ग्रीन फील्ड्स, बाइसिकल राइड, जुगाड़, गुजरात, जंगल, क्रिएचर्स, स्नो, फ्री जोन, रॉकी पाथ, उत्तराखंड, माउंटेन्स एंड सिचुएशन। ये जो 40 हार्डवर्ड्स है राइट इन यूर नोटबुक, जो तुम लोगों को नोटबुक्स में लिखना है। ओके, आफ्टर हार्डवर्ड्स तुम लोगों को ये सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, ये तुम लोगों को नोटबुक में लिखना है। फर्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क कैन नॉट बी डन बाय अ पुली। इसमें से यानी कि कौन सा वर्क जो है जो हम लोग पुली के बिना नहीं कर सकते हैं। हेल्पिंग ए ट्रॉली मूव क्रॉस ए रिवर, हेल्पिंग ए ब्लाइंड मैन क्रॉस द रोड, टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम अ वेल, लिफ्टिंग ब्रेक्स ऑन ए हाइट। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, हेल्पिंग ए ब्लाइंड मैन क्रॉस द रोड। ओके, नाउ सेकेंड वन, you can reach the school on a bullock carts if you have to. The right answer is move through green field. Third one, the jungle is made out of. Right answer is option D, all of these. Knee high water is found after rain in. Right answer is option A, in Assam. The transport used for going to school in blank make a foot sound. The right answer is option C, Gujarat. Then question number 2, write true or false statement. We can cycle to school if it can be reached by a road. True. We can go to school on a trolley if the school lies across a river. True. We can ride a jungle to reach school if it lies across green fields. False. क्योंकि जंगल में हम लोग किसी भी यानी कि कोई भी राइड्स का यूज़ नहीं कर सकते, हम लोगों को वहाँ पे वॉकिंग करके ही जाना होता है, इसीलिए। वी कैन नॉट रीच स्कूल इफ़ वी हैव टू क्रॉस अ रोड ब्रिज। फॉल्स। वी कैन राइड ए कैमल कार्ट टू स्कूल थ्रू ए थिक फॉरेस्ट। थिक फॉरेस्ट में से हम लोग कैमल कार्ट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए लास्ट वन इज ऑल्सो फॉल्स। देन क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। Vellum is used to reach school in some parts of Kerala. In parts of Assam, children reach school by crossing over bamboo bridge. Children in the mountains of Uttarakhand reach school by going on rocky path. In Rajasthan, children use a camel cart to reach school. Fifth one, sunlight does not pass through thick forest. Okay. Now question number 4. Match the type of a bridge in column A with the materials it is made of a column B by drawing arrow. Column A, first one trolley bridge. Trolley bridge बनाने के लिए क्या यूज़ होते हैं? वुड एंड आयरन रोप. सेकेंड वन bamboo bridge. राइट आंसर इज bamboo एंड रोप. सीमेंट ब्रिज, ब्रिक्स, आयरन, रोड एंड सीमेंट. देन फिफ्थ वन आयरन ब्रिज बनाने के लिए आयरन का यूज़ होता है. ओके, नाउ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. ओके, शॉर्ट आंसर्स. आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस. वेयर इज अ कैमल कार्ट यूज्ड फॉर गोइंग टू स्कूल? ए कैमल कार्ट इज यूज्ड इन राजस्थान फॉर गोइंग टू स्कूल. सेकेंड वन, when the school is very far, how do girls reach school? When the school is very far, girls reach school by riding on a bicycle. Okay. Then third, when we go to school through a jungle, what sound can we hear? When we go to school through a jungle, we can hear sound of birds and other creatures.
Fourth one, if we have to reach school by going through snow, what happens if the snow is soft? If the snow is soft, our feet will sink into it. अगर स्नो बहुत ही सॉफ्ट है तो हमारा पैर जो है उसके अंदर फंस जाएगा एंड वी वुड नॉट बी एबल टू वॉक प्रॉपरली, और हम लोग उसके ऊपर से ठीक से नहीं चल पाएंगे. ओके. Fifth one, what kind of children face difficulty when they have to go over rocky and uneven path in the mountain? Answer is children staying in the plains will face difficulty to walk on rocky and uneven path. Sixth one, on which type of a bridge is it easier to walk barefoot instead of wearing shoes or slipper? It is easier to walk barefoot instead of wearing shoes over a bamboo bridge. Okay. Then question number 6. The names of some forms of transport are given below in jumbled form. In some both words are jumbled. Write the correct name of the form of a transport against each and write one sentence about the condition in which this form of a transport is used. ये जो यहाँ पे जम्बल वर्ड्स दिए हैं उसका करेक्ट स्पेलिंग करके तुम लोगों को वो कहाँ पे यूज़ होता है वो लिखना है, और ये सारे क्वेश्चंस तुम लोगों को नोटबुक में लिखना है. ओके. फर्स्ट वन है बाइसिकल. बाइसिकल कैन बी यूज्ड व्हेन रोड आर गुड एंड वी हैव टू ट्रैवल अ लिटिल डिस्टेंस. सेकेंड वन इज कैमल कार्ट. A camel cart is used when we want to travel across a desert or sandy area. Third one is trolley. A trolley is used when we want to cross a river in mountain area. Fourth one, bamboo bridge. A bamboo bridge is used when it rains a lot in that area and lot of bamboos grows there. Fifth one, vellum. A vellum can be used to cross a water body. Okay. Short answer में seventh one, answer in 30-40 words. Okay. First one, question number 7. What kind of a place is Ladakh? Answer is Ladakh is a cold and dry place with a lot of rivers, hills and mountains all around. Second one, why should we use a pulley for taking out water from a well in a buckets? A pulley is a circular disc with rope attached to it. It is easier to pull things using a pulley. 8. What the difference between a bamboo bridge and cement bridge? Bamboo bridge made up of bamboo and ropes found in Assam. Cement bridge made up of bricks, cements and iron rods found in cities. Why are boats used for traveling in Kerala? There are lots of big and small water bodies in Kerala, so to cross them people use boats such as vellum. Okay, now long question answers. 10th one, विच मेथड फॉर गोइंग टू स्कूल, यानी कि यहाँ पे जो ABCD है उसको एक्सप्लेन किया है. फर्स्ट A, रिक्वायर द लास्ट एफर्ट. गोइंग टू स्कूल बाय वॉक ऑन प्लेन्स रोड और राइडिंग ए बाइसिकल. B, एरिया द मोस्ट डेंजरस, यानी कि बहुत डेंजर हो तो वॉकिंग थ्रू अ जंगल और ओवर स्नोवी हिल्स. देन C, रिक्वायर सम स्किल और प्रैक्टिस. walking on rocky and uneven path or a hills, walking on a bamboo bridge also. Then D, एरिया द फास्टेस्ट, जहाँ पे बहुत फास्ट हो. गोइंग थ्रू स्कूल बस वैन etc इन सिटीज़. E, इन्वॉल्व गोइंग ऑन रोड्स यूजिंग बाइक, कार, स्कूल बस, वैन etc. सेकेंड वन, विच मेथड ऑफ ट्रैवलिंग टू स्कूल? ऑप्शन ए, यूजिंग एनिमल्स, उसका आंसर है यूजिंग कैमल कार्ड्स एंड बुलक कार्ड्स. रिक्वायर द चिल्ड्रन टू वॉक, walking through a jungle, snowy path or on an uneven rocky path. Require motorized or other types of transportations machines.
using sorry using jugaad vehicles or auto, van, bus, etc. Then D, require the children to use their own energy other than walking, riding a bicycle and paddling with their own energy. Then E, may cause the children to slip or fall walking on hard or soft snow. तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स, ट्रू फॉल्स, MCQs, ये सब तुम लोगों को नोटबुक में लिखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ड वर्ड्स के बाद ये सब स्टार्ट करना है. ओके. अभी जो मैं ये आंसर्स बता रही हूँ ये तुम लोगों को नोटबुक में नहीं लिखना है. वैन एवर यू गेट टेक्स्ट बुक, जब तुम लोगों के पास टेक्स्ट बुक होगी तब तुम लोगों को यहाँ से देख के तुम लोगों को टेक्स्ट बुक में फिलअप करना है. ओके. देन इसके पहले जितने भी मैंने क्वेश्चन आंसर्स बताए वो सारे तुम लोगों को नोटबुक में लिखना है. देखो दिस पेज 1, ये जो सारे क्वेश्चन है वो फर्स्ट पेज पे है इन योर टेक्स्ट बुक. कलेक्ट सम ब्रिक्स, ले देम ऑन ग्राउंड इन द लाइज एज शोन इन द पिक्चर्स, ट्राई वॉकिंग ऑन देम. Was it easy? Answer is yes. Make a small bridge by trying together 4 or 5 bamboo poles. Ask your teachers to help you. Now walk on your bridge. How did you feel? Did you fall down? If you walk like this a few times, you will start finding it easy. Answer is at first I found it difficult to walk. Later it become easy. Starting में हम लोगों को वो difficult लगता है, then वो easy बन जाता है. Then question number 3. Do you think it would be easier to walk on this bridge is bare feet or with shoes or slippers? Why? Answer. It is easier to walk on this bridge is bare feet. It has more grips with toes. यानी कि इस ब्रिज के ऊपर हम लोग बियर यानी कि बिना स्लीपर्स शूज़ के चलेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को पैर रखने के लिए जगह बहुत ही कम होती है इसीलिए. Then could you tell the difference in both the pictures which would be easier using a pulley or without it? जो मैंने तुम लोगों को चैप्टर में एक्सप्लेन किया था, जो एक बच्चा पुली का यूज़ करके कुएं में से पानी निकल रहा था और जो दूसरा है वो पुली का यूज़ नहीं कर रहा था. द फर्स्ट बॉय इज़ पुलिंग आउट बकेट्स विथ बियर हैंड्स. द सेकेंड बॉय इज़ यूजिंग ए पुली. पुलिंग मेक्स इट ईजियर. जो सेकेंड पिक्चर में हम लोगों ने देखा था जो पुली का यूज़ कर रहा था जो बहुत ही ईजी था. Look around you, where all do you see the use of a pulley? List them. Lifting heavy loads, होस्टिंग फ्लैग्स etc. ये सारी चीज़ों के लिए पुली का यूज़ कर सकते हैं. नाउ पेज नंबर 3, जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 3 पे ये सारे क्वेश्चंस दिए हैं. हाउ इज़ द ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम ए बाम्बू ब्रिज? सीमेंट ब्रिज इज़ वाइड एंड स्टेबल. सीमेंट ब्रिज क्या होता है? बहुत ही वाइड होता है और स्टेबल होता है, यानी कि वो हिल नहीं सकता और रिस्की नहीं होता है. ओके. हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम? अबाउट 20, यानी कि 20 लोग एट अ टाइम में ब्रिज क्रॉस कर सकते हैं. इफ़ यू हैड ए चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़? वाई? आई वुड लाइक टू यूज़ सीमेंट ब्रिज. इट इज़ ईजियर टू वॉक ऑन एंड सेफ ऑल्सो. यानी कि सीमेंट ब्रिज क्या होता है? हम लोग ईजीली चल भी सकते हैं और वो सेफ भी होता है हमारे लिए. डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे to your school? If yes, what is the bridge like? I have to cross a cement bridge. कि तुम लोग जब स्कूल में आते हो तो सीमेंट ब्रिज को क्रॉस करके आते हो. Find out from your grandparents what kind of bridges were there when they were young. At that time there were only bamboo and wooden bridge. यानी कि तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे ओनली बाम्बू ब्रिज और वुडन ब्रिज थे, तब के टाइम सीमेंट ब्रिज नहीं थे. नाउ पेज नंबर 4 पे तुम लोगों के टेक्स्ट बुक में ये सारे क्वेश्चंस दिए होंगे जो तुम लोगों को ये नोटबुक में नहीं लिखना है. ओके. Is there any bridge near your house? Find out more about the bridge. First, where is the bridge over water, over a road, between two mountain or anywhere else? It is over water. ये आंसर सबका अलग हो सकता है. जब तुम लोग स्कूल में आते हो अगर रोड के ऊपर है तो इसका आंसर इट इज़ ओवर रोड भी आ सकता है या फिर इट इज़ ओवर वाटर ये भी आ सकता है. ओके. Who all use the bridge? Is it by people on foot or
also vehicles and animals. It is used by all, यानी कि ब्रिज सभी यूज़ कर सकते हैं, vehicles, animals, people also. Okay. फाइंड आउट वट मटेरियल्स आर यूज इन मेकिंग दिस ब्रिज, लिस्ट दे. ब्रिज बनाने के लिए कौन से मटेरियल का यूज़ होता है? सीमेंट, आयरन रोड, सैंड, ब्रिक्स, स्मॉल स्टोन्स. ये सारी चीज़ें ब्रिज बनाने के लिए लगते हैं. ओके. Draw a picture of the bridge. Do not forget to draw the train, vehicles, animals और people who cross the bridge. तुम लोगों को एक पिक्चर्स ड्रॉ करना है. देखो जैसे कि यहाँ पे दिया है एक पिक्चर में देखो ब्रिज दिया है, ड्रॉ किया है. देन बेन प्लेस, पोली ब्रिज, ऐसे तुम लोगों को पिक्चर्स ड्रॉ करना है. ओके. Imagine what difficulties we would face if the bridge were not there. इमेजिन करो कि कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हम लोगों को फेस करना पड़ेगा अगर ब्रिज नहीं होगा तो. पीपल विल नॉट बी एबल टू क्रॉस रिवर्स और ट्रेन्स ईजीली. दे विल हैव टू यूज़ बोट्स वेलम. अगर ब्रिज नहीं होगा तो रिवर को क्रॉस करने के लिए हम लोग बोट का यूज़ कर सकते हैं ना. हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स? येस, आई हैव सीन लार्जर बोट्स विथ स्मॉल रूम्स. यानी कि कुछ बोट्स होती है जो बहुत बड़ी होती है और उसके अंदर में छोटे छोटे रूम्स होते हैं. शिप जिसको बोल सकते हैं हम लोग, मोटर बोट होती है. कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर? आंसर इज देयर आर बिग बोट्स लाइक अ स्टीमर etc. Camel carts, page number 5. Have you ever sat in a camel cart of a horse carriage, Tanga? Where did you climb on it yourself or did someone help you? Yes, the टांगा वाला helped me. यानी कि अगर तुम लोग टांगे पे बैठे हो तो कौन हेल्प कर सकता है तुम लोगों को? टांगा वाला, जो उसको चलाता है वही हेल्प करेगा ना ऊपर बैठने के लिए. How did you feel riding in the carts? It is a bit shaky, still I liked it. Bullock cart, page number 5. Do you have bullock carts where you live? No. Do they have a roof? No. What kind of wheels do they have? Larger wooden wheels with iron rims. देखो यहाँ पे दिया है मेक अ ड्राइंग फॉर अ कार्ट. ऐसा तुम लोगों को पिक्चर्स बनाना है. कैन यू राइड अ बाइसिकल? येस. वॉट टफ यू टू राइड? मे एल्डर ब्रदर. यानी कि किसने सिखाया है चलाने के लिए? तो हमारे एल्डर ब्रदर्स या सिस्टर भी हो सकती है. हाउ मेनी चिल्ड्रन कम ऑन बाइसिकल्स टू योर स्कूल? अबाउट 20 या फिर मोर देन 20 भी हो सकता है. ओके. नाउ पेज नंबर 7. डू यू हैव सच व्हीकल्स इन योर एरिया? येस. वॉट डू यू कॉल दिस इन योर एरिया? बाइक वैन. यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बाइक वैन. देन वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग्स लाइक दिस? वाई? येस, इट इज़ अ ग्रेट फन. यानी कि जो जुगाड़ की बात कर रहे थे ना हम लोग, उसके रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस है. कैन यू टेल वाई इज़ इट कॉल्ड जुगाड़? इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर सर्विंग अदर पर्पज़. यानी कि अदर पर्पज़ के लिए यूज़ किया है, इसीलिए उसको जुगाड़ कहा है. Then now page number 8. Have you ever been in a thick jungle? Yes. Write about the jungle. The jungle is full of large trees. There is always a sound of birds, animals, etc. Moving on the snow. Then page number 8. Have you ever seen so much snow? Where is the films or anywhere else? I have seen so much snow in films. Do you think that such places have snow all the time? Why? Yes, these places are very cold and located at a great higher from the surface of the earth. Rocky path, page number 9. Do you face any difficulty on the way to your school? No. Page number 9. Go to a ground or an open space with your friends. Act the way you will walk in this situation. First, the ground is made of soft and smooth rose petals. The ground, उसका आंसर है yes. Every time the way of walking was different. The ground is covered with a thorn and there is a tall grass on the side. Third, the ground is covered with snow. Fourth,
Third, was there a difference in way you walk each time? Answer is yes. Every time the way of walking was different. When on rose petals I walked smoothly, it was a very pleasing experience. When on thorns I walked very curiously, that means बहुत ही difficulties. When on snow I walk with small steps on snow is slippery. Now page number 10. Do you also have punishment in your school? What kind of? Yes, the teachers robbed me for not preparing to lessons. How do you feel when you are punished? I felt ashamed. I promised myself never fell prepare lesson. Do you think that there should be punished in school? Yes, otherwise there will be no difference between good and bad students. Is punishment the only solution to misdeeds? From some rules for school that avoid missed without punishment. No, punishment is not the only solution. Is solution to misdeed. There are other method like students who behave well should be rewarded. There should be marks allotted in the examinations for not doing any misdeed. ड्रॉ अ पिक्चर्स ऑफ यूर ड्रीम्स स्कूल एंड राइट अबाउट इट. एक पिक्चर्स ड्रॉ करना है स्कूल की तुम लोगों को और उसके बारे में लिखना है. माई ड्रीम स्कूल हैज़ अ नाइस बिल्डिंग. इट हैज़ ए गार्डन इन द फ्रंट. इट ऑल्सो हैज़ ए प्ले ग्राउंड. देयर शुड बी प्रॉपर फैसिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड टॉयलेट. देयर शुड बी अ लॉट ऑफ बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी. ये सारी फैसिलिटी हमारे स्कूल में भी अवेलेबल है ना. तो तुम लोगों को अपने स्कूल का एक पिक्चर्स ड्रॉ करना है. सो नाउ ये पूरी एक्सरसाइज सब टेक्स्ट बुक के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे सब मैंने एक्सप्लेन किए हैं. अभी तुम लोगों को जो मैंने होमवर्क दिया है हार्ड वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, ये सब तुम लोगों को नोटबुक में लिखना है. और जो तुम लोगों को मैंने अभी यहाँ से जो क्वेश्चंस बताए ये तुम लोगों को नोटबुक में नहीं लिखना है क्योंकि ये तुम लोगों के ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में है. तो व्हेन एवर यू गेट टेक्स्ट बुक तो बाद में तुम लोगों को ये उसमें फिलअप करना है. सो नाउ थैंक यू.